یہ تھے جناب چودھری خادم صاحب جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے الیکشن کا نقشہ پیش کیا ہے. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ انتخابات 27 نومبر کو ہونے تھے، لیکن کوئی گورنمنٹ کی معروضی حالات کی پیش نظر یہ انتخاب مرحلہ وار ہو رہے ہیں. تو اس الیکشن میں ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی تھے، وہ 27 نومبر کے حساب سے ادھر تشریف لائے تھے اور کمپین میں انہوں نے پیر صاحب کو بڑا سپورٹ کیا ہے. چودھری شباب صاحب جن کا تعلق ڈوگار سے تھا، وہ الیکشن لیٹ ہونے کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا، تو وہ واپس چلے گئے. تو پیر وارث شاہ صاحب اور ہم سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ جتنے دن ادھر رہے انہوں نے بہت وقت دیا، بہت ہمارے ساتھ چلے. اللہ تعالیٰ ان کا چلنا، ان کی محنت قبول اور مقبول فرمائے. تو اس کے بعد حضرات گرامی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو اس تقریب کو میں سمیٹ رہا ہوں. تو میرے سب سے آخری مقرر جو ہیں اور ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں، مشیر صدر آزاد کشمیر چودھری حکمداد صاحب، وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. تو میں ان کو آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ بھی لگاؤں گا: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جناب چودھری حکمداد صاحب سٹیج پہ ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. دوستو بلند آواز نہ نعرے نہ جواب دیا حکمداد صاحب جو ہمارے جگری سنگی بھی ہے دوست برادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. چودھری حکمداد صاحب، بشیر حکومت چودھری حکمداد صاحب، چودھری مہربان صاحب، چودھری مہربان صاحب، چودھری شباب صاحب. شروع کرتا ہوں اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. سب سے پہلے میں یونیورسل بیاری کے تمام حضرات جو یہاں آج میرے اعزاز میں یہ پروگرام کا انعقاد کیا، میں سب کا، ہر ایک فرد کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، اور میری طرف سے آپ کو دل کی تہ گہرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں. آج کی اس خوبصورت جلسے کے انعقاد کرنے پر اور صدارت کرنے پر میں جناب حاجی عدالت صاحب چریال والے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنت اور کوششوں سے آج اتنا بڑے جلسے کا انعقاد ہوا. میں جناب پیر وارث شاہ صاحب اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے جن کی انتہائی محنت، کوشش اور لگن سے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں. سٹیج پر بیٹھے ہوئے مرکزی نما مشیر آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر چودھری خادم حسین صاحب اور خطابر ایڈوکیٹ صاحب اور کیسر ایڈوکیٹ صاحب اور جتنے بھی حضرات ہیں، بالخصوص لالا محبت صاحب، چودھری خلیل صاحب، چودھری شبیر صاحب اور راجہ شباب صاحب، اور جتنے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک فرد کا نام لیں تو بہت زیادہ ٹائم ہے، کیونکہ ادھر لائن بڑی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ساتھ کھانے کا ٹائم بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی ختم کریں گے آپ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. میں برطانیہ سے جناب وارث شاہ صاحب نے کہا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ چند دن کمپین کریں. میں اسپیشلی آیا ہوں، اپنی کوشش کروں گا، اپنے جو بھی وسائل ہوئے، اپنے جو بھی اختیارات ہوئے، اپنے جو بھی ساتھی ہوئے، ان کے ساتھ ملا کر انشاءاللہ ان کی کمپین بھرپور طریقے سے چلائیں گے. اور میں امید اور واثق سے کہتا ہوں، وثوق سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ سیٹ پی ٹی آئی کی ہے، پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیتے گی. اور انشاءاللہ کیسر شاہ صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں وہ ہمارے باصلاحیت اور نوجوان وکیل ہیں، پڑھے لکھے ہیں،
तो मैं समझता हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी है, जितने भी हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, थोप से लेकर इस डगार रुझा तक और सनेड़ा तक, आज ये सादिक साहब भी यहाँ में तक देखे हैं, वो बुजुर्ग हमारे, वो भी तशरीफ फरमाए हैं। ये सनेड़ा आखिरी कोना है इस यूनियन कौंसिल का। तो मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर जब कोशिश करेंगे, और जितने भी यहाँ मौजूद हैं, अगर हम आज से ही ये नियत कर लें कि कैसर शाह साहब को हम भारी अक्सरियत से जिताएंगे, जीते हुए ये हैं, मैं इंशाल्लाह आपको यकीन से कहता हूँ कि ये जीते हुए हैं, इसलिए कि ये गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट जो है होती है वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है। तो गवर्नमेंट ने इनको टिकट दिया है कैसर शाह साहब को पीटीआई का, तो ये इंशाल्लाह जीत जाएंगे। तो इसके लिए मैं कनेर से जो हजरात दूसरे यूनियन कौंसिल 18 से तशरीफ लाए हैं, जनाब हाजी अलीजान साहब, चौधरी जावेद साहब, और भी जितने हजरात कनेर से मेरे एजाज में आने के लिए जहाँ तशरीफ लाए, मैं उनका भी खुशआमदीद करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की है। बुजुर्गों और दोस्तों, हमने इस इलाके की वसीत और मुफाद की खातर 2016 से लेकर अजहर सादिक का साथ दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे वसाइल हैं, रोडें देखें किस तरह अस्पताल हैं, अस्पताल न होने के बराबर है। हमारे जो स्कूल हैं वहाँ पहले तो बात है, उसका रिजल्ट आप देखें, आप लोग यहाँ रहते हैं, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेंबर अख्तर साहब हैं, यहाँ बैठे हुए थे, पता नहीं घर चले गए हैं, और लाला मोहब्बत साहब हैं, वारिस शाह साहब हैं। ये संजीदा लोगों का काम है कि ये रिजल्ट जो हमारा इस दफा आया है ब्लो स्कूल का, वो डगार स्कूल का, ये अफसोस करने के काबिल है कि करोड़ों रुपए जो है ये साल के इनका बजट दिया जाता है। ये जहाँ से ये बच्चे पढ़कर आगे जाएंगे तो ये कौम बनेंगे, एक कौम बनकर ये इस इलाके की तामीर तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आप सब लोगों का ये कोशिश होनी चाहिए कि हम मिलकर इस इलाके की तामीर तरक्की करें। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि जिस तरह अजहर सादिक साहब ने 18 से लेकर खतरास तक 14 किलोमीटर सड़कें रखी है, ये 28 करोड़ रुपये का मनसूबा है। इसी तरह आम से लेकर ये छोज तक इन्होंने जो 18 किलोमीटर रखी है, 36 करोड़ रुपए का मनसूबा है। ये बहुत बड़े मनसूबे हैं, अल्लाह के फजल और करम से ये इम्प्रूव हो चुके हैं, मंजूरी हो चुकी है, ये काम शुरू होगा। हमारे अगला जो लाए अमल है वो स्कूलों को अपग्रेड कराना है। बिजली की फुकदान है, यहाँ पर खम्भे नहीं है, किसी जगह पर ट्रांसफार्मर नहीं है, हमने इन गवर्नमेंट से इन्हें लेना है। इसलिए आप लोगों पर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप सब लोग यकजा होकर, यकजान होकर आप ये कैसर शाह साहब का साथ दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बड़े प्रोजेक्ट हम मंजूर करके यहाँ लाएंगे। मैं भी सदर आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर से बात करूंगा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद से, कि हमारे मेगा प्रोजेक्ट हैं, बच्चों का स्कूल है, इसको हमने गर्ल्स कॉलेज जो है इसका इनकाद करना है। इसी तरह ब्लो हाई स्कूल को भी हमने इंटर कॉलेज का दर्जा दिलवाना है। हमारा यहाँ अस्पताल जो है न होने के बराबर है, डिस्पेंसरी है, उसके लिए भी हमने सब ने मिलकर मुतफिका होकर ये कोशिश करनी है। उस कोशिश के लिए हमने सब ने मिलकर, ये हमारे इलाके के वसीत और मफदात में है कि हम भारी अक्सरियत से कैसर शाह साहब को जितवाएं और अपने इलाके के लिए वसीत और मफदात की खातिर जदोजहद करें। ये क्योंकि गवर्नमेंट ही दे सकती है, अभी 4 साल गवर्नमेंट के बाकी हैं। तो इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप वोट ज़ाया न करें। आप जो है इस वोट, जो कीमती वोट है, उसको कैसर शाह और पीटीआई के हक में इस्तेमाल करके वो ये साबित करें कि पीटीआई यूनियन कौंसिल बिहारी पीटीआई का किला है और ये भारी अक्सरियत से जीतेंगे। इसी तरह हमारा मेंबर जो है मलोट से है, उसका नाम तो मैं अभी नहीं है, लेकिन अरफान जो है जिनकी सासी ये करते हैं, ख्वाजा अरफान साहब, वो उनको भी ये यकीन दिलाते हैं कि हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अब अपना मेंबरी भी हम मुंतखब करें, क्योंकि भुतानिया से मैं आया हूँ स्पेशल रिप्रेजेंट करने के लिए पीटीआई को, और वारिस शाह साहब की कॉल पर आया हूँ। इंशाल्लाह अजीज इनको अपने कोशिश और मेहनत से ये दिखाएंगे कि हम पीटीआई को यहाँ से जिताएंगे। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, बरतानिया में बहुत सारे लोग हैं जो कैसर शाह साहब के लिए दुआ करते हैं। उनमें चंद एक मैं नाम लेना चाहता हूँ। नसीम कैनी एडवोकेट साहब हैं, उनसे मेरे फ़ोन पर रब्ता होता रहा। इस तरह राजा तारिक साहब हैं रजवा वाले, और राजा माजिद खान जमिया वाले, वो भी उन्होंने भी ये कोशिश थी कि चलो हमारा भी वहाँ से भी हिस्सा डालते हैं, कोशिश करते हैं। उनके भाई यहाँ मौजूद है, राजा निजाबत, राजा मरबत साहब, और इसी तरह अपने नदीम कैनी यहाँ साहब मौजूद हैं, उनकी भी कोशिशें हैं। मैं समझता हूँ कि वो एक बड़े नाम हैं, उनका बड़ा वसी अलकाबा भी है, और कैसर शाह साहब के लिए वो खुसूसी दुआ गो भी हैं। इसी तरह हमारे अजीज़ मेरे भांजे चौधरी अमीर हुसैन,
चौधरी अल्ताफ हुसैन, उनसे भी मेरी बात होती रही है। उन्होंने भी कहा, बल्कि जब मैं आया हूँ तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से भी रहकर जो भी हो सका वारिस शाह साहब को हम अपनी मायद का नसर यकीन दिलाते हैं। वहाँ जो भी अलकाबाब है, जो भी लोग हैं जो हमारी सुनते हैं, हम ज़रूर उन तक अप्रोच करेंगे, ज़रूर उन तक रब्ता करेंगे ताकि वो कैसर साहब शाह साहब को कामयाब करें। तो मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर जितने भी भाई दोस्त बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस जिम्मेदारी को निभाएं और कैसर शाह साहब को 8 तारीख तक आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि मैं सबको तकरीबन बच्चों से लेकर बूढ़े तक जानता हूँ, हम सब एक यूनियन कौंसिल के हैं, इस एक इलाके के हैं। इस प्यारी यूनियन कौंसिल में हम कैसर शाह साहब को जिताकर अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बेहतर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमने कोशिश करनी है। तो इसके लिए आप सब लोगों को मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, आपने हिम्मत करनी है और हिम्मत करके कैसर शाह साहब को जिताना है और बल्ले पर मोहर लगानी है। बाकी इंशाअल्लाह अजीज जहाँ इलाके के जो मसाइल हैं, अजहर सादक साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे मामलात में, बहुत सारे इलाकों में काम भी किए हैं। मैं समझता हूँ कि एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, कामयाबी इंसान के तब कदम चुमती है जब वो इत्तेफाक और इत्तेहाद से हो। पिछली दफ़ा 2021 में जो है किनेर वालों ने मथी धोकर वोट डाले अजहर सादक साहब को। अल्लाह के फजल से बड़ट्टी तक 4.5 किलोमीटर मंजूर हो चुकी है और हो सकता है कि काम भी जल्दी शुरू हो जाए। यहाँ से ये पुल का भी मंजूरी हो की है और आने वाले वक्त में जो अगला लक्ष्य है, मैं यकीन से कहता हूँ कि अजहर साहब आपको ये पूरी फैसिलिटी देकर जो आपसे वादा किया गया था उधर दूसरी साइड में पुल का वो भी, और इसका ये पुल हमारे ये मलौर से बनता है, इसको भी इंशाल्लाह ये पाया तक मिलता पहुँचाएंगे। ये इसलिए हो सका कि आप लोग मुत्तहिद थे, मुनज़्ज़म थे, इसलिए मुत्तहिद हो सका। यही मैं पैगाम अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों को देना चाहता हूं कि आप भी मुनज़्ज़म होकर, मुत्तहिद होकर, ताकि गवर्नमेंट है इससे हम अपने इलाके की वसीतर मफाद के अंदर इकट्ठे होकर मिलकर जदोजहद करें ताकि हम कामयाबी की तरफ इम्कनार हो सकें। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ शाह साहब और उनकी जितनी भी टीम है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम का इनेकाद करके जो मुझे एजाज़ बख्शा है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको और आपके तमाम साथियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मैं इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म करना चाहता हूँ। तो माँ बाप का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।